Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back everyone. My name is Dr. Abid and हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ये इंटरेक्टिव नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें लास्ट प्रीवियस लेक्चर में वी स्टार्टेड प्रोनाउंस बेसिकली आफ्टर अ क्विक रिव्यू ऑफ द नाउंस. We were talking about pronouns, and in pronouns we completed the first heading of personal pronouns. Before proceeding, let me discuss, or let me start this lecture with the groups of pronouns. So basically groups of pronouns. Groups of pronouns. Basically, there are three groups of pronouns. Number one, mm, first person pronoun. First person pronoun. Second person pronoun. And third person pronoun. Sorry, third person. Third person pronoun. So there are three main groups of pronouns: first person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun. So I will discuss them individually, starting with the first person pronoun. What is first person pronoun? Basically, the person who is talking, like I am a first person. uh, mm, mm, मतलब मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग. तो मैं जो द प्रोनाउन दैट विल रिप्लेस मी will be first person pronouns, such as my name is Dr. Abid. I am a doctor. So I am talking. So I is a first person pronoun. ठीक है. My name is Dr. Abid. I am a doctor. सही है. तो I in this sentence is a first person pronoun. अब आ जाओ. We are football ना, we are footballer, such as this is a team of football या पाकिस्तान cricket team. We are पाकिस्तान cricket teams player. तो we अगर हम कहेंगे तो we again we are talking about ourselves. तो इस वजह से ये भी एक first person pronoun आएगा. तो there are four pronouns that are used as first person pronouns: I, we, me and us. ठीक हो गया. जिसमें I सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर है. वी बेस प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. मी अगेन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. एंड अस इज यूज्ड एज अ प्लूरल. ठीक हो गया. इसमें एक बेसिक रूल याद रखिएगा कि वेन एवर यू यूज आई, यूज इट विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है. आई इज ऑलवेज यूज्ड एज अ कैपिटल लेटर. सही हो गया. इसके अलावा फिर जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि देयर आर प्रोनाउंस, सर्टेन प्रोनाउंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस. ठीक हो गया. यू कैन go to the details, yeah, you can listen to the details in the previous lectures. तो अब क्या था, if you guys remember, सब्जेक्ट क्या होता था? सब्जेक्ट basically is a person, place or thing on which the action, yeah, मतलब the person, place or thing which does the action, basically ना, which does the action shown by the verb. ठीक है.
the action is done by the subject, and object was the person, place, or thing that receives the action basically. So this is a receiver of the action done. ठीक हो गया? ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से आप देख सकते हैं, मेरा जो इससे पिछला लेक्चर था। तो अब हम आते हैं कि फर्स्ट पर्सन में मैंने अभी तक आपको बता दिया कि फोर बेसिकली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, जो कि हमेशा आप यूज करेंगे कैपिटल लेटर में, वी, मी और अस। ठीक हो गया? जिसमें आई और मी जो है दे आर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, और वी और अस जो है दे आर प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। अब इन्हीं में कुछ ऐसे हैं दैट कैन बी यूज्ड as a subject of a verb in a sentence, and others are used as an object of a verb in a sentence. So the first person pronouns that can be used as a subject are I and we. ठीक हो गया? ये सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल। ठीक हो गया? किस तरह कि I can be used as a subject, क्योंकि मैं आई एम टीचिंग, सच एज आई एम टीचिंग। सही हो गया ना? आई एम टीचिंग, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm supposed to remove this. Okay. I I am teaching. ठीक है? तो यहाँ पे I first person है and I am the subject because the action is done by me. ठीक है? Object me and us. Again me singular हो गया, us plural हो गया। ठीक हो गया? तो me and us are used as an object। ठीक हो गया? इसी तरीके से आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसके चार फर्दर मतलब चार प्रोनाउंस हैं दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी एंड अस। आई एंड वी, आई इज अ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, me is a singular first person pronoun, we is plural first person pronoun, us is plural first person pronoun. I or we can be used as subject, me and us can will be used as are used as objects। ठीक हो गया? Now let's come to the second person pronouns। ये अगर किसी को नहीं क्लियर तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स या इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज ये इसकी काफ़ी डिटेल्स मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस की मैंने बताई हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस लेक्चर में नहीं जाऊंगा। ठीक हो गया? प्रीवियस इन द लेक्चर दैट वी स्टार्टेड in which we started pronouns, discussing pronouns, I have already discussed this subject and object details। ठीक है? Okay, what's the difference between, yeah, how the pronoun is used as a subject in a sentence or as an object। अब आ जाते हैं, let's talk about the second person pronoun। ठीक हो गया? ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सिस्टम खत्म हो गया। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस में होता क्या है बेसिकली, द पर्सन टू whom we are talking। ठीक है? द पर्सन स्पोकन टू इज द सेकंड पर्सन, लाइक you guys। I am teaching, so I is a first person pronoun। I am teaching you, so you will be the second person pronoun। ठीक है? क्योंकि you guys are the one to whom I am talking ना। ठीक है? तो you will be the second person pronoun। ये it can be used both as singular sense and plural sense, and along with this it can be used as a subject as well as an object। Again the details अगर किसी को डिटेल्स चाहिए हैं तो ऑनेस्टली मुझसे आप पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स भी एंड कमेंट सेक्शन में भी, लेकिन यू विल फाइंड द डिटेल्स इन द प्रीवियस लेक्चर बिकॉज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट माई प्रोनाउन सेक्शन इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ एक आता है वर्ड यू का, बिकॉज सेकंड पर्सन is the second person pronoun is the pronoun to whom we are speaking ना, we are speaking। ठीक है? तो
The person spoken to is second person pronoun basically. Again, you can be used as singular, plural, both subject and object. ठीक हो गया? Let's come to the next heading, third person pronoun. अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में दो बंदे बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? सच एज कि आप और मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, अब हम लोग किसी चीज और के बारे में बात करें तो दैट विल बी द थर्ड पर्सन pronoun. The words आपको आइडिया हो जाएगा. The words that come under the heading of third person pronoun are he, him, she, her, they, them. ठीक हो गया जी? और it. Did you guys understand? ठीक है. He और him used for masculine. ठीक है, मेल्स के लिए यूज होता है, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था नाउन्स में, जिस तरह मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, इसी तरीके से द प्रोनाउन रिप्लेसिंग द मैस्कुलिन नाउन विल बी मैस्कुलिन प्रोनाउन. ठीक हो गया? तो ये आपने मैस्कुलिन को रिप्लेस करता है. शी और हर यूज होता है फीमेल्स के लिए और फेमिनिन प्रोनाउंस के लिए. दे और देम. ठीक हो गया? एंड इट. अब अगेन सेम क्राइटेरिया या सेम कैटेगराइजेशन के सिंगुलर और प्लूरल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक हो गया? ही और हिम. ठीक हो गया? ही और हिम, शी और हर, दे आर यूज्ड एज सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक हो गया जी? और इट अगेन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सही हो गया? सिर्फ आर यूज्ड एज दे और देम आर यूज्ड एज प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. ठीक. अब जिस तरह ही एंड शी आर यूज्ड फॉर मैस्कुलिन मेल्स एंड शी और हर आर यूज्ड फॉर फीमेल्स, सो इसी तरीके से जो इट है ना, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द प्रोनाउन द नाउन बेसिकली, दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स और एनिमल्स. ठीक हो गया जी? डॉग्स के लिए जिस तरह आप कहते हो कि इट इज अ वेरी गुड डॉग, इट अगेन इट्स अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन. आप किसी को बता रहे हो, मैं आज सपोज आपसे बात करता हूँ, आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड ब्रीड. ठीक है? तो आप बेसिकली दो बंदे, टू पीपल आर टॉकिंग, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और इट मे बी प्रेजेंट बट किसी और के बारे में आप बात कर रहे हो. सो इट इज यूज्ड एज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सही हो गया जी? यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप सो. सिंगुलर का भी हमने कवर कर दिया, प्लूरल का भी कवर कर दिया, बेसिक हमने प्रोटोकॉल्स भी कवर कर दिया कि ही और हिम जो है वो मैस्कुलिन प्रोनाउन है या मैस्कुलिन या मेल को कवर करेगा. मेल कैटेगरीज में आप यूज करोगे मेल मैस्कुलिन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए आप यूज करोगे. शी और हर फेमिनिन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए आप यूज करोगे. इट जो है वो बेसिकली थिंग्स या एनिमल्स की जगह के लिए आप यूज करते हो. दे और देम जो है वो आप प्लूरल के यूज करते हो. अब आ जाए दूसरे, जिस तरह हमने ऊपर यूज किया था कि देर आर सर्टन नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया? तो इसमें जो ही, शी, इट और दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट.
of a verb in a sentence. और him, her, it, again it, and them, they are used as an object. ठीक हो गया, ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस. इट यहाँ पे कॉमन है, जिस तरह यहाँ पे यू था, यू आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो. यू जो है वो सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स में यूज हो सकता है. सो he, she, it, they are used as a subject of a verb in a sentence. ठीक है. और him, her, it और them, they are used as an object of a verb in a sentence. सही है. तो ये हैं बेसिकली थ्री ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. हमने डिस्कस कर लिया इनके सिंगुलर क्लॉज में भी, प्लूरल क्लॉज में भी कौन कौन से सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकते हैं. फर्दर जो इसके बाद की हमारी आगे जो आएगी, डिस्क्रिप्शंस आएंगी, या जो इसके बाद की हमारी सारा कुछ मतलब हम डिवीजन्स वगैरह पढ़ेंगे, वो हम इसी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए और इस डिवीजन को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ेंगे. इसके बाद मतलब इससे आगे से जो भी हमारे जो प्रोनाउंस की होंगी, तो हम उसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और ये चीज़ें, ये तीन ग्रुप्स के हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे. जिस तरह आगे अब हमारी कैटेगरी शुरू होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फिर आ जाएंगे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, आ गए, यार आगे डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउंस आ गए. तो वो हम तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह जहन में आप रखिएगा. फर्दर ये आगे यूटिलाइज या यूज होंगी. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरफ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एज द नेम इंडिकेट्स, रिफ्लेक्सिव, जो कि रिफ्लेक्सेस को शो करता है. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सेस मीन के दैट इज मतलब बेसिकली रेफर्स टू अ पर्सन और एनिमल दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक हो गया. जो कि काम कर रहा है, बेटे कुछ कुछ शो कर रहा है, उसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हो. ठीक हो गया. the pronouns basically that that are that refer to yeah, those pronouns that are the subject of a verb are called reflexive pronouns. इनके एग्जांपल्स जब मैं आपको दूंगा तो इंशाल्लाह आपको काफी ये चीज भी क्लियर हो जाएगी. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आता है इस कैटेगरी में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, सॉरी, हिमसेल्फ, herself, itself, ourself, ourselves, yourself, and the last one is themselves. ठीक हो गया जी. Reflexive pronouns, the pronouns that are the subject of a verb. The person, animal, or thing that is the person or animal that is the subject of a verb is the reflexive pronoun. ठीक हो गया. और इनकी इस कैटेगरी के अंडर आता है आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ
और सेल्स, योर सेल्फ एंड देम सेल्स। ठीक हो गया जी। अगेन वही, इफ यू गैस रिमेम्बर प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर प्लूरल क्रॉस होता है, तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि माई सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ सिंगुलर, हिमसेल्फ, herself, itself, both all of them are singular। ठीक हो गया। अब ourselves, yourselves and themselves, they are plural। if you guys remember जब मैं आपको पढ़ाया था how to convert a noun from singular to plural, तो वहां पे हमारे पास जो आए थे the words those were ending on f। तो हमने वहां पे क्या कहा था कि f will be replaced by v and es is added। प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखिएगा जहाँ पे हमने प्लूरल सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज किया है, वहां पे क्या था कि द वर्ड्स द नाउन्स दैट आर एंडिंग ऑन एफ, when we convert these singular noun into plurals, the f will be replaced by v and es is added। ठीक है, तो सेम इज द केस। अब आप माई सेल्फ या योर सेल्फ, चलें योर सेल्फ की एग्जांपल ले लेते हैं। योर सेल्फ है, दिस इज अ सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको आपने प्लूरल में कन्वर्ट किया तो योर सेल्फ, SEL, एफ को हटा के वी डाल दिया और ES ऐड कर दिया आपने। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं आवर सेल्व्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी माई सेल्फ की जगह आर सेल्व्स अगर आपने लगाना हो या देम सेल्व्स लगाना हो, तो अगेन एफ हटा के आपने VES कर दी। इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल्स इफ यू गाइस गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर्स, तो उसमें आपको काफी डिटेल से ये चीज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे ये था माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ, दे आर सिंगुलर फर्स्ट सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स आर प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब अगेन आपको याद हो कि हमने थ्री कैटेगरीज डिस्कस की थी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा आपके ख्याल में आता है? माई सेल्फ। देखो माई, क्यों माई सेल्फ क्यों आता है? माई सेल्फ विल रिप्लेस आई बेसिकली whenever you use it in a sentence। अगेन मैंने उसी तरीके से लिख दिया यार, आई एम सो सॉरी। माई सेल्फ विल रिप्लेस आई एंड मी, सो माई सेल्फ इज अ फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गया जी। अब सेकंड पर्सन में क्या था? योर सेल्फ आ जाओ। योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाई डू आई ऑलवेज राइट F before that L thing। Yourself is a second person pronoun. Why? Because it will replace you in a sentence. So you was a second person pronoun. That's why the yourself is a second person pronoun। ठीक हो गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इफ यू गाइस रिमेम्बर, अभी हमने जो डिस्कस किया कि थर्ड पर्सन में ही आता है, तो हिमसेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ, ये तीन जो हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। वाई? बिकॉज इफ यू गैस रिमेम्बर, अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे थ्री जो ग्रुप्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें और हिम ही और हिम वाज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो उसको रिप्लेस, ही और हिम विल बी रिप्लेस्ड बाय हिमसेल्फ इन फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हिम विल बी रिप्लेस फॉर हिमसेल्फ, इसलिए ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हर क्या? हर, शी एंड
her will be replaced by herself, it's a third person pronoun, and it will be replaced by itself, that is third person pronouns. सेम इज द केस, अब सिंगुलर आपने डिस्कस कर लिया, ये सिंगुलर केसेस थे, ठीक हो गया, ऑल ऑफ देम वर सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इनके प्लूरल वर्जन, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, चलो इसी तरीके से आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपको अगर प्रीवियसली याद हो तो हमारा प्लूरल था वी या अस का, ठीक हो गया, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ourselves, ourselves, ये प्लूरल, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल ग्रुप है ये, our we and us will be replaced by ourselves, so this is a first person plural reflexive pronoun। सेकंड पर्सन पे आ जाओ, अगेन यू था वहां पे, यू का यू ही रहेगा, एंड इसका योर सेल्व्स आ जाएगा। योर सेल्व्स में आपको कैसे आपने प्लूरल में कन्वर्ट किया, एफ इज रिप्लेस्ड बाय वी एंड ई एस इज एडेड, योर सेल्व्स, जो हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में जो हमने प्रोटोकॉल सीखा था, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाओ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में क्या आता था, दे, them, so they and them are replaced by themselves, themselves, ठीक हो गया। अगेन जिस तरह मैंने कहा, ये भी प्लूरल है, themselves इज अ प्लूरल वर्ड, तो थर्ड पर्सन प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सही हो गया जी। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच इज बेसिकली अ पर्सन और एनिमल दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, द एक्शन इज शोन और डन बाय इट, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अगेन तीनों चीजें डिस्कस कर ली, उसके टाइप्स या उसके हेडिंग्स के अंडर क्या क्या आता है उसमें, फिर हमने सिंगुलर भी डिस्कस कर लिया, प्लूरल भी डिस्कस कर लिया, फिर सिंगुलर प्लूरल में फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक हो गया। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। इफ यू गाइज, चलो हम थोड़े से एग्जांपल्स भी इसके डिस्कस कर लेते हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद इस क्लास को रिकॉर्ड करूँ, तो आई बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने रिप्लेस किया माई सेल्फ ने, ठीक है। इसी तरीके से वी ऑर्गेनाइज्ड दिस क्लास आवरसेल्व्स, ठीक है, हमने इस क्लास को, वी, हमने मतलब डेफिनेटली यू गाइस आर अटेंडिंग इट, तो आप लोगों के साथ मिलके वी ऑर्गेनाइज्ड दिस क्लास आवरसेल्व्स, तो वी इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन अ प्लूरल सेंस, क्योंकि हम अब वी आर मोर देन वन, ठीक है, इन अ प्लूरल सेंस, तो हमने मिल के इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, तो आवर सेल्व इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सही हो गया। इसी तरीके से और भी इंशाल्लाह एग्जांपल्स, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, यू कैन आस्क हेयर इन द चैट बॉक्स, अगर कुछ रिपीट करना हो, या यू गाइस कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट ऑन इट। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्चुअली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आज मैं प्रोनाउंस का सेक्शन, वी आर गोइंग क्वाइट स्लो बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल्स, और कुछ स्टूडेंट्स इनिशियली कह रहे थे कि आराम से पढ़ाएं ये, तो एनीवेज इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर माय प्रोनाउन सेक्शन इन दिस लेक्चर, दैट्स व्हाई मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आज जल्दी जल्दी पढ़ाने की। आफ्टर डिस्कसिंग दिस groups of pronouns, we discuss the reflexive
प्रोनाउन। ठीक हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल गो टू द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, as the name shows, interrogation, like asking the questions basically. ठीक हो गया, asking the questions. That is called interrogative pronoun, questioning noun इसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चनिंग प्रोनाउन इसे बेसिकली कह सकते हो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? वर्ड्स कौन कौन से प्रोनाउंस हो सकते हैं? हु, आप नॉर्मली अगर देखो तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट होते हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस टाइप की चीजों से शुरू होते हैं। हु, व्हाट, विच, whom, whose। ठीक हो गया जी। हु, व्हाट, विच, whom एंड whose। सही हो गया। इसमें सिंगुलर प्लूरल इस तरह है कि जी आप इंटेरोगेट कर रहे हो, हुज कार इज दिस। ठीक हो गया। हुज बाइक्स आर दे, आर दीज। ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू पीपल डूइंग। तो ये आप बेसिकली दोनों सेंसेस में मिक्स का यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें ये है थोड़ा सा कि आपने हु जो है बेसिकली, हु कैन बी यूज्ड इन बोथ as subject and object in a sentence, and whose are only used as an object of a verb in a sentence। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा कि जिस तरह भी देखें, मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर ये सेंटेंस है। जिस तरह हु इज ही टॉकिंग टू, अब ही अब जब आपने यूज किया है तो ये सेंटेंस में ही अगर आपने यूज किया है हु के साथ, तो ये एक बंदे की बात आप कर रहे हो। ठीक है। हु आर दे टॉकिंग टू, तो अब आप दो या तीन से ज्यादा दे आ गया, तो ये बेसिकली आपने अपने इसके साथ इसके अंदर और प्रोनाउंस या और दूसरे पूरे सेंटेंस को आपने पढ़ के इसका पता चलता है कि ये आप सिंगुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हो या प्लूरल के बात कर रहे हो। सच एज whom आर यू प्लेइंग विद, आर यू प्लेइंग विद। यू जब आएगा तो अगेन एक सिंगुलर बंदे की बात हो रही है, whom आर यू प्लेइंग विद। लेकिन अगर मैं कहूँ whom आर दे प्लेइंग विद, तो ये बात चली जाएगी एज अ प्लूरल फॉर्म। इसी तरीके से काफी इसकी और भी एग्जांपल्स हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट। ठीक है। एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, अगेन आप ज्यादा बंदों के बारे में पूछ रहे हैं। सही है। तो इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रॉपरली एक सेंटेंस को के अंदर आप इंटेरोग्रेट करते हो। आप एक बंदे से भी कर सकते हो, आप क्लास से भी। आर यू, व्हाट आर यू गाइज राइटिंग। ठीक है। या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सपोज अगर आप चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो आई विल आस्क ऑल ऑफ यू एट वंस, व्हाट आर यू गाइज राइटिंग। ठीक है। या आप अगर कुछ नोट्स लिख रहे हो तो मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को एक बल्क से भी इंटेरोगेशन कर सकता हूँ और एक सिंगुलर बंदे से भी इंटेरोगेशन कर सकता हूँ। सही हो गया। बस ये याद रखिए कि जो हु है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है, जबकि जो हुज है वो खाली एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। इंटेरोगेटिव के बाद आप आ जाते हो इंटेरोगेटिव के बाद आप आ जाओ
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। ठीक हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है कि जिस एज द वर्ड्स शो, एज द वर्ड शो, डिमॉन्स्ट्रेट करना, शो करना। ठीक हो गया। डिमॉन्स्ट्रे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, दीज आर कॉल्ड द शोइंग वर्ड्स। शोइंग वर्ड्स क्या होता है, जो कि कुछ शो कर रहे हो। आगे मैं आगे इसकी आपको एग्जांपल्स देता हूँ, तो दैट विल बी मोर clearly explained with the examples. The words that come under this heading are this, that, those, these। ठीक हो गया जी। This, the, that, those and these, they are the excuse me, they are the demonstrative pronouns, such as let me give you the example. This is a goat. Wait a sec. Wait, excuse me. This is a goat. So this, the word this is showing something to you, na? This is a pen. I am drawing my line with the pen. So this is a pen. So this is a demonstrative pronoun that is showing something to you guys. So इसमें बेसिकली आपने क्या चीजें देखनी होती हैं, अगेन सिंगुलर प्लूरल बार आपको आपने देखना है, जिस तरह दिस और दैट, these are singular descriptive pronouns, these and those are plural demonstrative pronouns। ठीक हो गया। सिर्फ ये चीज देखनी है इसके अंदर जहन में रखिए कि दिस, चलिए इधर मैं आपको साइड पे बता देता हूँ। दिस एंड these, these two words of descriptive pronoun, yeah, these two descriptive pronouns are used to point out the things that are near you, such as this is my laptop. So the laptop is quite near to me. It is just beside me, yeah, even in front of me. So I will use this. These are my books. Books मेरे पास पड़ी हैं, मेरे करीब हैं। तो दिस और these वाला जो वर्ड है, जो डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है, these descriptive pronouns are used for the things that are near to you। ठीक हो गया। जबकि those and that, these descriptive pronouns are used for the things far away from us। Look at those mountains। The mountains are quite away from us, हमसे काफी दूर हैं। तो जब हम उनकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे, क्या कहेंगे, that and those का word हम यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिप्टिव इंटेरोगे सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आई होप सो आपको समझ आ गया कि वो प्रोनाउंस जो कि आपको कुछ शो करना चाह रहे होते हैं, कुछ दिखाना चाह रहे होते हैं, उन्हें आप कहते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसमें आपकी आता है दिस, दैट, जो कि सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दोज और दोज और दीज, ये आपका प्लूरल डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है। ठीक हो गया, प्लूरल डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है। अब दिस और दीज आपने यूज करना है करीब की चीजों के लिए, दोज और दैट आपने यूज करना है दूर की चीजों के लिए। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि दीज आर माई बुक्स। ठीक है, तो ये बुक्स मेरे
पास पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दीज आर माई बुक्स। लुक एट दोज माउंटेन्स, माउंटेन्स मुझसे बहुत दूर हैं, उसके लिए मैं दोज का वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इनके अलावा भी इनके अलावा भी देयर आर सर्टेन प्रोनाउंस जिनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अभी तक कि हमने एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अभी तक कि हमने प्रोनाउंस का आज अपना कवर कर लिया। प्रोनाउंस, हम एक क्विक रिव्यू प्रोनाउंस का कर लेते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लिए थे, जिसका मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था फर्स्ट लेक्चर में। पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड नंबर पे हमने पढ़े थे जो जो अब आज हमने डिस्कस किए थे। पर्सनल प्रोनाउंस के बाद हमने ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे। फिर फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े थे। ठीक हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े थे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे। डिमॉन्स्ट्रे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ लिए। ठीक हो गया जी। इसके अलावा बाज प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक हो गया जी। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो कि बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस की ही एक फॉर्म है। पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये ओनरशिप को शो करते हैं। आई हैव अ पेन, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई इस पेन को लेके जाएगा, दिस पेन इज माइन, ठीक है, इसमें आपका आ जाता है माइन, योर्स, हिज और हर, एटसेट्रा। ठीक हो गया। हिज भी इसी में आता है, हर भी, हर हर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, हिज और हर। ठीक हो गया। तो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अंदर अगर आप पोजेसिव होके अपनी ओनरशिप शो करते हैं तो दैट इज नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। आई, वी और यू पर्सनल प्रोनाउंस थे, इफ यू गैस रिमेम्बर। आई हैव अ लैपटॉप, दिस लैपटॉप इज माइन। ठीक है। वी हैव अ हाउस, ठीक है, बस सही है। इसी तरीके से जब आपने किसी चीज के ऊपर ओनरशिप शो करनी होती है तो उसे आप कहते हो पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। इसके बाद आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। व्हाट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन? बेसिकली जो कि रेफर करता है पर्सन, प्लेस और थिंग को इन जनरल। ठीक है, इन जनरल। ऑल, ऑल ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर माई कुलीग्स। ठीक है। आई एम टीचिंग या आई एम टेकिंग अ क्लास, ऑल ऑफ देम आर माई स्टूडेंट्स। सही हो गया। तो ऑल बेसिकली एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिसने इन जनरल एक चीज को रिप्लेस कर दिया। ऑल, एनी, आइदर, दे आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो वो प्रोनाउन बेसिकली जो कि इन जनरल किसी चीज को, एक ग्रुप को, एक जगह को, कुछ लोगों को रिप्लेस कर देता है। ठीक है। मतलब अब आप
एक टीम मेंबर्स के नाम बता रहे हो, और आखिर में कहो कि ऑल ऑफ देम आर पाकिस्तानी प्लेयर्स, ऑल ऑफ देम आर, सपोज जिस तरह मैंने भी आपको बता दिया कि ऑल ऑफ यू आर माय कुलीग्स, इस तरह करके, तो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिसने फुली एज अ जनरल रिप्लेस कर दिया है स्टूडेंट्स को या कुलीग्स को या एक ग्रुप ऑफ लोगों को रिप्लेस करके ऑल का वर्ड आ गया है। ठीक है, तो ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। फिर इसके अलावा आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun. What is relative pronoun? A relative pronoun refers to an earlier noun, sentence or part of a sentence. Again, वही स्टार्ट के, मतलब जिस तरह indefinite प्रोनाउन है, relative प्रोनाउन भी उसी टाइप का एक है कि all of you listen to me। अब मैं आपको मुखातिब करना चाह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बन के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑल ऑफ यू, यू। तो ऑल एक रिलेटिव या इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिसने रिप्लेस कर दिया है एज ए जनरल सबको। ठीक है, रादर देन कि मैं सबके नाम लूं कि जी फलां इधर देखो, फलां इधर देखो, फलां इधर देखो। ऑल ऑफ यू एक जनरली रिप्लेस कर दिया है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन बना के। और अगेन सेंटेंस अर्लियर नाउन, जो जो सेंटेंस के स्टार्ट का नाउन है वो भी बन गया है, तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन बोथ आर द सेम। ठीक है, सिर्फ आपने इनका जो पार्ट है सेंटेंस के अंदर, उससे इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, इसलिए डिटेल ज्यादा इसकी मैं वो नहीं किया था। बेसिकली जो हमने डिस्कस किए थे ये हैं पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। बाकी जरा मिलते जुलते हैं, तो वो जब हम इंशाल्लाह सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इसके आगे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो रिलेटिव या इनडेफिनेट, इनडेफिनेट अगर आप एक एक जनरल एक ग्रुप को रिप्लेस करते हो इन जनरल किसी वर्ड के साथ, तो उसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस में नाउन को इनिशियली नाउन को आप रेफर करते हो एक और उसको अपनी तरफ मुखातिब करते हो इन इन अ ग्रुप या इन जनरल, तो उससे आप रिलेटिव प्रोनाउन कहते हो, जिस तरह ऑल ऑफ यू लिसन टू मी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? जो द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग वन एट अ टाइम। ठीक हो गया। अब रादर देन मैं कहूँ अली प्लीज अटेंड द क्लास टुमारो। ठीक है, या किसी भी फर्दन फर्दन एक एक स्टूडेंट का मैं नाम लेके कहूँ कि प्लीज अटेंड द क्लास या प्लीज लिसन टू मी, तो मैं इस चीज को ईच एंड एवरी पर्सन को ऑल इन अ ग्रुप मुखातिब करने के लिए या कहने के लिए मैं कहूँगा ईच वन ऑफ यू शुड अटेंड द क्लास टुमारो। तो बात मैंने ग्रुप में की लेकिन सबको मुखातिब करके की। ठीक है, ईच, ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। ठीक है, इसी तरीके से आइदर होता है, नीदर होता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये क्या है? द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। अगर हर कोई सुन रहा है तो मैं एट अ टाइम हर किसी से बात कर रहा हूं। ईच ऑफ यू शुड अटेंड द क्लास टुमारो। तो मैं वन एट अ टाइम बेसिकली आपको रेफर करके बात कर रहा हूं, तो माई प्रोनाउन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोनाउन दैट वो प्रोनाउन या मतलब रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। सही हो गया ना? एक वक्त में
एक बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, बैठे आप सब हो, लेकिन मैं अलग अलग एक बंदे को, ईच ऑफ यू शुड लिसन टू मी। ठीक हो गया? ईच ऑफ यू, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, एनी वन या आइदर ऑफ यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। या तो वो हर किसी से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव बेसिकली आपको, ईच वन एट अ टाइम, हर किसी से मैं अपना बात कर रहा हूँ इसी ईच का वर्ड यूज करके। सही हो गया? दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें एक आता है फिर आगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, आई नो, आई एम सो सॉरी कि आज मेरी क्लास लंबी हो गई है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होता है कि when we use reciprocal pronouns when two subjects receive the benefits or consequence of that action simultaneously। ठीक हो गया जी? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली होता है कि जब pronouns, yeah, the reciprocal pronouns when two subjects receive the benefits or consequences of each other simultaneously, such as कि मतलब कोई ऐसा प्रोनाउन जो कि कॉन्सिक्वेंसेस या बेनिफिट्स किसी से डिस्कस कर रहा हो, सच एज गो हेल्प ईच अदर, गो हेल्प ईच अदर, ईच अदर। अब ये एक बेनिफिट है बेसिकली, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या उसको इक्वली डिवाइड कर रहे हो। गो हेल्प ईच अदर, ठीक है? यू शुड हेल्प वन अनदर, यू शुड हेल्प ईच अदर। तो ये एक बेनिफिट है बेसिकली जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक कॉन्सिक्वेंस समझ लो, ये एक बेनिफिट है जो कि आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सही हो गया? तो उसकी डेफिनेशन है कि व्हेन टू subject receive the benefits or the consequence of the same action simultaneously। सही हो गया? आपने हेल्प करनी है, लेकिन डिवाइड कर दिया आपने काम सब के ऊपर, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है, पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस कर लिया है हमने। हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस कर दिया है, इनडेफिनेट प्रोनाउन हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, पोजेसिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आई होप सो आप लोगों को समझ आएगा, डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे वो कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। एक इधर एक और भी समटाइम्स यूज होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन भी अगेन वही माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हेल्प्स, हर सेल्फ में जहाँ पे इंटेंसिटी शो कर रहे होते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन बेसिकली, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? जहाँ पे आप इंटेंसिटी शो कर रहे होते हो, आप एक ओनरशिप शो कर रहे होते हो, जिस तरह आप ऊपर पोजेसिव नाउन, तो पोजेसिव नाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन हुआ सॉर्ट ऑफ एक तरह के ही हो सकते हैं कि ठीक है, इसमें आप माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एटसेट्रा आप यूज कर सकते हो कि जी इसमें भी बेसिकली इंटेंसली अपने वो शो कर रहे होते हैं कि आई कैन हेल्प माई सेल्फ आउट। ठीक है, तो मैं एक इंटेंसली एक चीज का जवाब दे रहा हूँ कि आई कैन हेल्प माई सेल्फ आउट। सो ये एक इंटेंसिव वो है, जुमला है कि जी सच एज आई डोंट नीड एनीवन्स हेल्प, तो आई कैन हेल्प माई सेल्फ आउट। तो इस तरह ये एक इंटेंसिव वो है, प्रोनाउन है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, एंड आई एम सो सॉरी मेरी क्लास काफ़ी ज़्यादा आज लंबी होगी, बट आई ट्राई टू फिनिश माई
प्रोनाउन वाला लेक्चर, जिसमें हमने तकरीबन जितने मेरे नॉलेज में थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब डिस्कस कर लिए। अगर कुछ रह गया हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यू गैस कैन टेल मी, या इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी भी। तो प्रोनाउंस के बाद इंशाल्लाह मैं देखता हूँ आगे हम या वर्ब शुरू करेंगे या एडजेक्टिव्स वगैरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एंड सून सून इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप सो एंड आई विश कि आप लोगों को समझ आती हो, ये क्लासेस मेरी हेल्पफुल हो, किसी की भी हेल्प हो जाए। आप कमेंट्स करें, do comment in the comment section to improve these everything, because mm, with your suggestions, with your help, uh, I can make these classes more helpful, and इस छोटी सी कोशिश से आई होप सो किसी की हेल्प हो जाएगी। एंड आई विश के मैंने जो भी चीज़ें अभी तक समझाई हैं सबको समझ आ गई हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आस्क मी in the comments or in the chat box, and feel free to give me the suggestions to improve this uh, teaching things and everything, anything you can. If you have any kind of suggestions, feel free to give it to me. Thank you so very much for coming, thank you so very much for attending. I hope आप लोगों को ये this class was beneficial and helpful. तो I hope to see you guys soon inshallah, and हम continue करेंगे इसको। Till then, uh, thank you so much, take care, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.